Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, Motion and Time. Introduction. The period between two events is called time. It plays a significant role in the planning of our daily activities. For example, we have our breakfast, take a bath, clean our teeth at a particular time. Therefore, in our daily life, we can understand the importance of time and it needs to be measured accurately. अच्छा देखिए, दो इवेंट्स के बीच का जो पीरियड होता है उसे हम कहते हैं टाइम, और टाइम का एक बहुत ही वाइटल रोल है हमारी डेली एक्टिविटीज़ में. हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, नहाते हैं या ब्रश करते हैं एक पर्टिकुलर टाइमिंग पे. सो टाइम कितना इंपॉर्टेंट है एंड इसको एक्यूरेटली मेजर करना भी उतना ही ज़रूरी है. मेजरमेंट ऑफ टाइम. As we know, time is very important for us in our day-to-day activities. Time is a physical quantity. It can be measured. The earth completes one rotation in 24 hours. Rotation happens regularly over and over again. That is why the sun rises, changes its position during the day and finally sets. Perhaps the position of sun was the earliest method of telling time. देखिए, टाइम आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मेजर किया जा सकता है. अर्थ अपना एक रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट करती है. सन राइज होता है, देन वो सेट होता है, तो एक दिन में अपनी पोजीशन को चेंज करता है, राइट. तो ये सन जो था ये पहले के टाइम पे अर्लीस्ट मेथड था. सन की पोजीशन को देख के टाइम का पता लगाया जाता था. द यूनिट्स ऑफ टाइम. सेकेंड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम. इट इज इक्वल टू 1/86,400th part of the solar day. The period between two successive noons taken as unit of time is called a solar day or a day. A solar day is divided into 24 equal parts and each part is called an hour. 1 hour is divided into 60 equal parts and each part is called a minute. Further, 1 minute is divided into 60 equal parts and each part is called a second. देखिए, जो दो सक्सेसिव नून्स के बीच का टाइम होता है वो सोलर डे होता है. सोलर डे को फिर आपका 24 आवर्स में डिवाइड किया गया है और 24 आवर्स में आपके जो 24 जो इक्वल आपके पार्ट्स हैं वो 1 आवर के हैं. फर्दर आपका जो 1 आवर है वो आपको डिवाइड किया गया है 60 इक्वल पार्ट्स में जिसे मिनट कहते हैं. एंड देन फर्दर 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जिसे कहते हैं सेकंड्स. वन सोलर डे इज इक्वल्स टू 1 सोलर डे और 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स. 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स. 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स. ये आप सभी को पता होगा. अब 1 सोलर डे या 1 डे में कितने सेकेंड्स होंगे? 86,400 seconds. 1 year is equals to 365 days. 1 decade is equals to 10 years. 1 century is equals to 10 decade और 100 years. एक सेंचुरी का मतलब होता है 100 साल या आपसे 10 decade भी कह सकते हैं. 1 millennium is equals to 10 centuries और 1000 years. Maharaja Jai Singh too was a great astronomer, mathematician and architect of his time. He was born in 1686 in Rajasthan. At the age of 15, he was honored with the title of Savai. Savai means 1 and quarter. He built the Jantar Mantars which are located in Ujjain, Varanasi, Jaipur and Delhi. One at Mathura does not exist anymore. He designed 3 major instruments for Jantar Mantar. These are Samrat Yantra, राम यंत्र एंड जयप्रकाश. महाराजा जय सिंह जो थे ये एक बहुत ही ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन और आर्किटेक्ट थे अपने टाइम की. तो इन्होंने जंतर मंतर को बनाया था जो कि आपके उज्जैन, वाराणसी, जयपुर और दिल्ली में. एक मथुरा में भी था बट वो अब एग्जिस्ट नहीं करता. तो उन्होंने 3 मेजर इंस्ट्रूमेंट्स जो थे इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किए थे जंतर मंतर के लिए. वो थे आपके, एक तो था आपका सम्राट यंत्र, एक राम यंत्र और एक था जयप्रकाश सम्राट. Samrat Yantra is basically huge sundial. Its accuracy is up to half a minute. The time indicated by sundial is fairly correct. However, these cannot be used after sunset. जो सम्राट यंत्र है आपका, ये आपका जो बड़ा सा सनडायल है उसे कहा गया है. इसकी एक्यूरेसी आपकी हाफ मिनट तक की रहती है एंड जो टाइम इंडिकेट करता है वो काफ़ी करेक्ट होता है जो सनडायल करेक्ट करता है. बट एक सनसेट के बाद इसे यूज़ नहीं किया जा सकता. Activity 10.1. Take a long pole and 1 measuring tape. Fix this pole in the vertical position in an open place or park in the early morning. The pole should be far away from buildings. Observe the shadow of pole and measure the length of shadow with the help of tape in the morning. Measure length of shadow at noon and in the afternoon also. आपको एक लंबा सा पोल लेना है और एक मेजरिंग टेप लेना है. इसको आप वर्टिकल पोजीशन में किसी भी ओपन प्लेस पे, लाइक आपका पार्क है या गार्डन जो भी है, आप उसमें आप उसको प्लेस कर देंगे अर्ली मॉर्निंग. फिर पोल जो है आपकी बिल्डिंग से दूर होना चाहिए. फिर आप पोल की शेडो को ऑब्जर्व करेंगे, उसकी लेंथ को आप ऑब्जर्व करेंगे टेप की हेल्प से. फिर आप देखेंगे कि जो शेडो की लेंथ नून में और आफ्टरनून में कितनी है. अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सन की पोजीशन में, देखिए ये आपकी पोजीशन है आफ्टरनून में, दिस इज नून, और ये आपकी पोजीशन है
यानी कि जो शेडो की पोजीशन है मॉर्निंग में. We find that the length of shadow is the maximum in the early morning. As the sun rises high in the sky, the length of shadows decrease. Minimum shadow length is at noon. The length or shadow starts increasing as the sun moves down in the sky. तो यहाँ से आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा आपकी जो लेंथ मैक्सिमम थी आपकी मॉर्निंग में, और नून में जब आपका सन जो एकदम आपके ओवरहेड था उस टाइम पे शेडो आपकी कम थी यानी छोटी थी. However, it doesn't work after sunset or on cloudy days. देखिए सन डायल को टाइम मेजर करने के लिए यूज़ किया गया था. जो लेंथ या जो डायरेक्शन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की शेडो की, वो चेंज होती है सन की पोजीशन के साथ. तो जो इंक्रीज या डिक्रीज होता है आपके शेडो की लेंथ में दिन के टाइम पे, आपका सन डायल की हेल्प से फिर मेजर किया जाता है टाइम. लेकिन सबसे बड़ी कमी इसकी यही है कि इसको सनसेट के बाद आप ये काम नहीं करता है, ना ही क्लाउडी डेज में, क्योंकि क्लाउडी डेज में आपका क्या होता है कि आपका सन होता ही नहीं है. सो इसको मेजर कैसे करेंगे फिर, जब सन की पोजीशन ही नहीं चेंज होगी तो फिर ना शेडो बनेगी ना ही टाइम का पता चले. सम हिस्टोरिकल sundials still exist in India. One dial is at Jantar Mantar in Delhi. The sundial of Delhi was built by Maharaja Jai Singh II of Jaipur. The largest sundial in Jaipur still works and can measure time up to an accuracy of 2 seconds. आपके कुछ हिस्टोरिकल सन डायल्स अभी भी आपके एग्जिस्ट करते हैं, जैसे जंतर मंतर आपका दिल्ली में जो है, ये भी आपका एक सन डायल है. इसको महाराजा जय सिंह ने बनाया था, सेकंड जयपुर के. और जो लार्जेस्ट सन डायल है आपका ये जयपुर में, और ये काफ़ी ये आपकी 2 सेकेंड्स तक की एक्यूरेसी को ये मेजर कर सकता है. सैंड क्लॉक और आवर ग्लास. It works on the principle that all sand from the upper chamber falls into the lower chamber in a fixed amount of time. This fixed amount of time is the unit in which time is measured. अच्छा देखिए सैंड क्लॉक में क्या होता है कि सैंड यहाँ पे रखी जाती है एंड देन सैंड ऊपर वाले चेंबर से वो लोअर चैम्बर पे जाती है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम में. तो इस तरह से टाइम को मेजर किया जाता था. Star and constellation. At night, the position of well-known stars or their groups changes after fixed intervals of time. रात को कुछ जो well-known stars होते हैं या ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स को constellation कहा जाता है, वो अपनी fixed interval of time के बाद अपनी position को change करते हैं. Water clocks. Water clocks were among the earliest timekeepers that didn't depend on the observation of celestial bodies. These were stone vessels with sloping sides that allowed water to drip at a nearly constant rate from a small hole near the bottom. Other type was of cylindrical or bowl-shaped conceivers designed to slowly fill with water coming in at a constant rate. Markings on the inside surfaces measured the passage of hours as the water level reached them. Water clocks सबसे पहले के आपके टाइम कीपर्स है जो कि आपकी सेलेस्टियल बॉडीज़ की ऑब्जर्वेशन पे डिपेंडेंट नहीं थे, यानी कि ना तो ग्रुप ना तो आपके स्टार्स पे डिपेंडेंट थे ना ही सन की पोजीशन पे डिपेंडेंट थे. तो ये आपके स्टोन वेसल्स होते हैं, इनमें स्लोपिंग साइड्स होती है जिसमें आपका वाटर ड्रिप करता था कांस्टेंट रेट पे, एक छोटा सा होल होता था बॉटम में. तो जो दूसरा टाइप था आपका वो था सिलेंड्रिकल या बोल शेप कंसीवर, जो डिज़ाइन किया गया था कि वो स्लोली फिल करे वाटर को एक कॉन्स्टेंट रेट से जो उसमें आ रहा है. Another type consists of a metal bowl with a hole in the bottom. When placed in a container of the water bowl, would fill and sink in certain time. दूसरा तरह का आपका एक मेटल बोल था जिसके बॉटम में होल था. तो जब इसको किसी कंटेनर में रखा जाता था, आपके कंटेनर ऑफ वाटर में, तो जो बोल है वो भर जाता था एंड देन वो कुछ सर्टेन टाइम में वो सिंक हो जाता था. मॉडर्न डिवाइसेस फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम. पेंडुलम. Clocks that measure time accurately could be made only after the invention of the pendulum. Galileo Galilei was an Italian scientist. He discovered the principle of the pendulum. अच्छा, Galileo Galilei एक इटालियन साइंटिस्ट थे और उन्होंने पेंडुलम का जो प्रिंसिपल था उसको डिस्कवर किया था. तो एक्यूरेटली जो टाइम को मेजर किया गया, क्लॉक्स जो टाइम को एक्यूरेटली मेजर की गई थी, उनमें पेंडुलम का यूज़ किया गया था. अ पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ वेट tied to a string and other end of the string is tied to a support. When it is given small push, the pendulum makes to and fro movements about its position of rest. This type of motion is called oscillation. The time taken by a pendulum to complete one oscillation is called its time period. Galileo found that time period for one oscillation can be changed by changing the length of the string. अच्छा, पेंडुलम में आपका क्या होता है कि एक वेट आपका टाइड होता है एक स्ट्रिंग से, और दूसरे एंड में जो स्ट्रिंग होती है वो एक सपोर्ट से टाइड होती है, और जब उसको हल्का सा पुश करते हैं तो ये टू एंड फ्रो मूवमेंट्स कहते हैं, तो जिसे कहा जाता है ऑसिलेशन. टाइम जो एक पेंडुलम लेता है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए, उसे कहा जाता है उसका टाइम पीरियड. तो गैलीलियो ने देखा कि जो टाइम पीरियड एक ऑसिलेशन का, उसको हम चेंज कर सकते हैं अगर हमने जो स्ट्रिंग की लेंथ को चेंज कर दिया, यानी उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया. तो a pendulum of about 25 centimeter length takes exactly 1 second for one oscillation about its position of rest. एक पेंडुलम
जिसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर। ओके, वो एग्जैक्टली एक ऑसिलेशन के लिए आपका 1 सेकेंड लेती है। द पेंडुलम इन अ क्लॉक स्विंग्स repeatedly under the action of a wound up screen and controls the movement of its hand. This is the technological application of the scientific principle of the periodic movement of a pendulum. Activity 10.2. Objective: to measure the time period of the pendulum. Make a pendulum by hanging a weight from a string. The hanged weight is called the bob of the pendulum. Take a stopwatch, push the bob to the right or left by a distance equal to or less than 10% of the length of the pendulum and release it. Start your stopwatch as the bob passes through its rest position. Allow the bob to swing through 25 complete oscillations and stop the stopwatch at the end of the 25th oscillation. After that, divide the time on the stopwatch by 25. You will find the time period of pendulum. If we increase the length of the string and measure the time period again, time period will be increased. देखिए, आपको एक पेंडुलम बनाना है, एक वेट को हैंग करना है अपने स्ट्रिंग से, और जो आपका हैंग वेट होता है ना, उसे कहते हैं बॉब, बॉब ऑफ द पेंडुलम. फिर आपने क्या करना है, एक स्टॉप वॉच लेनी है, बॉब को हल्का सा पुश करना है, राइट या लेफ्ट, किसी भी साइड आप कर सकते हैं. फिर अपनी स्टॉप वॉच को स्टार्ट करना है और बॉब आपका जो इसकी रेस्ट पोजीशन से आपका पास करेगा. फिर आप देखेंगे कि जो बॉब है उसको आपने 25 कंप्लीट ऑसिलेशंस पूरे करवाने, लाइक ये जो टू एंड फ्रो मोशंस है, और जैसे ही 25th ऑसिलेशन होगा कंप्लीट आपका, आप स्टॉप वॉच को बंद कर देंगे. इसके बाद आप क्या करेंगे, टाइम को डिवाइड कर देंगे स्टॉप वॉच पे बाय 25, तो आपको पेंडुलम का टाइम पीरियड मिल जाएगा. अगर आप स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ा देंगे तो टाइम पीरियड अगेन आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. Wrist watch. It does not have a pendulum. It has a balance wheel which serves the same purpose as pendulum. It works on a different principle. These watches have the crystals or the substance called quartz. This crystal can vibrate very fast and at a very precise rate. अच्छा, जो आपकी रिस्ट वॉच होती है इसमें तो कोई पेंडुलम नहीं होता, बट इसमें बैलेंस्ड व्हील होता है जो कि सेम पर्पस सर्व करता है जो एक पेंडुलम का होता है. ये डिफरेंट प्रिंसिपल पे काम करता है. इन वॉचेस में क्रिस्टल्स होते हैं एक सब्सटेंस की जिसे कहा जाता है क्वार्ट्ज. तो ये जो क्रिस्टल होते हैं बहुत ही फास्ट वाइब्रेट करते हैं, बहुत ही प्रिसाइज रेट पे. दीज वाइब्रेशंस आर यूज्ड टू measure time accurately. A quartz clock is much more accurate than a pendulum clock. तो इनकी जो वाइब्रेशन होती है ना, इनको मेजर किया जाता है टाइम को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए. एंड क्वार्ट्ज क्लॉक जो होती है ये आपकी ज़्यादा एक्यूरेट होती है देन अ पेंडुलम क्लॉक. Stop watches. A clock or a wristwatch cannot be used to measure short time intervals accurately. They are used to measure long time intervals. For short time intervals, stopwatch is used. It is improved form of a wristwatch. It can be started or stopped by pressing a button and measures time up to 1/10 of a second. Some digital watches can also be used as stopwatch. Digital watches do not have hour, minute or second hands. They display time in digits only. अच्छा, stopwatch आपने देखी होगी. देखिए, क्लॉक या रिस्ट वॉच है वो बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते. ओके, ये लॉन्ग इंटरवल्स, आपके जो लॉन्ग टाइम इंटरवल्स होते हैं उनको मेजर करते हैं. तो शॉर्ट टाइम इंटरवल्स के लिए स्टॉप वॉच का यूज़ किया जाता है. इसको आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं. जस्ट एक आपके बटन को प्रेस करना होता है और ये 1 सेकेंड का 1/10 जो पार्ट होता है इसको मेजर कर सकते हैं. कुछ डिजिटल वॉचेस को भी यूज़ किया जाता है एज स्टॉप वॉच. डिजिटल वॉच देखिए, आपकी ये डिजिटल वॉच है ना, ये टाइम को डिस्प्ले करते हैं डिजिट्स में. Atomic age of time. Most of the modern life depends on accurate time. Many technologies have become dependent on accurate time. Atomic clocks have been developed which are accurate up to 1/10,000 of a second. Examples are cesium atom clock, hydrogen and atom clock. These clocks work on the principle of vibrations of atom. अच्छा, आप देखिए जो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं. ओके, अब इससे जो है मोर एक्यूरेट टाइम को मेजर किया जा सकता है. एटॉमिक क्लॉक्स इस तरह से डेवलप की गई हैं कि वो उनकी एक्यूरेसी होती है अप टू 1/10,000 ऑफ अ सेकेंड. इसके एग्जांपल्स हैं आपके, जैसे कि है आपका सीजियम एटम क्लॉक या फिर हाइड्रोजन एटम क्लॉक. और ये सारे जो वाइब्रेशंस होता है एटम का, उसके प्रिंसिपल पे काम. मोशन. वी कैन एक्सपीरियंस मोशन फ्रॉम आवर डेली लाइफ. A tree is fixed at a place, so we say that it is stationary. Similarly, house, school, electric poles are all stationary objects which remain fixed at a place. On the other hand, men, animals, birds, cars, buses, trains, etc. do not remain stationary all the time. They move from one place to another.
For example, some man moves when he walks along a road. A bird moves when it flies in the sky. Similarly, a car or bus moves on a road. A train moves on the track. This type of movement is called motion. अच्छा देखिए, एक जैसे ट्री अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड होता है, तो मतलब वो क्या है, स्टेशनरी है, रेस्ट की पोजीशन पे. जैसे आपका हाउस है या स्कूल है या इलेक्ट्रिक पोल्स है, ये सारे आपके स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक जगह पे आपके फिक्स्ड रहते हैं. जबकि अगर आप देखेंगे बस को या कार को या किसी ह्यूमन बीइंग को, वो मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो ये आपके मोशन में रहते हैं. मोशन is a state or condition of a body during the time in which it changes its position with respect to a fixed time. Motion का मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी का स्टेट या कंडीशन during the time जिसमें अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं with respect to a fixed point. The initial point from which a body starts moving is called a reference point. For example, a school in a village is 2 kilometers north of the railway station. We have to specify the position of the school with respect to the railway station. In this example, railway station is a reference point. तो देखिए, कोई जो इनिशियल पॉइंट होता है जहाँ से कोई बॉडी स्टार्ट करती मूव करना, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट. जैसे एग्जांपल दिया है कि एक स्कूल जो है गांव में वो 2 किलोमीटर है नॉर्थ में रेलवे स्टेशन के, तो हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी पोजीशन किसकी, स्कूल की, विद रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन. तो इस एग्जांपल में रेफरेंस पॉइंट इज रेलवे स्टेशन. We also know from our everyday life that the same body may seem moving from one person and at rest for other person. For example, to the passenger in a moving car, trees, building and the people on the roadside seem to be moving backward. However, to the people standing on the roadside, the car and its passengers are moving in the forward direction. At the same time, each person in the moving car finds that other persons are not moving as the distance between them is not changing. Hence, motion and the rest are relative to each other. देखिए, कुछ डेली लाइफ में आप देखते हैं कुछ लोग आपको मूव करते हुए नजर आएंगे, कुछ पर्सन आपको रेस्ट पे नजर आते हैं, है ना. जैसे कि जो पैसेंजर्स हैं आपके मूविंग कार में, ट्रीज, बिल्डिंग्स या जो पीपल है रोड साइड में, उनको लगेगा कि ये पीछे की तरफ जा रहे हैं. ओके, हालांकि जो लोग खड़े हैं रोड साइड में, तो जो कार या उसके जो पैसेंजर्स हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. और सेम टाइम पे जो हर पर्सन है मूविंग कार का, वो उसको लगता है कि जो दूसरा पर्सन है वो मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि जो डिस्टेंस है उनके बीच का वो चेंज ही नहीं हो रहा. तो इसीलिए मोशन और रेस्ट एक दूसरे के रिलेटिव है. द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द डिस्टेंस. Travel distance in a specified direction is displacement. If the body is thrown vertically upward, after some time it comes back to the same spot. In this case, the displacement is zero, but distance traveled by the body is not zero. अच्छा, जो कोई भी बॉडी जो पाथ ट्रैवल कर रही है, तो जो उसका लेंथ है एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे कहते हैं डिस्टेंस. और डिस्टेंस, जो ट्रैवल डिस्टेंस है किसी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट. फॉर एग्जांपल, आपने एक बॉडी के ऊपर फेंका वर्टिकली अपवर्ड और कुछ टाइम के बाद वापस सेम स्पॉट पे आ जाती है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, बट डिस्टेंस ट्रैवल जो किया है वो जीरो नहीं होगा. राइट. टाइप्स ऑफ मोशन: लीनियर मोशन, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, सर्कुलर मोशन, irregular motion, oscillation, intermittent motion. Linear motion. Linear motion is the most basic of all motions. Objects, if not interrupted, will continue to move in a straight line indefinitely. Under normal circumstances, gravity and friction bring the object to rest. Linear motion is measured with the aid of speed and direction. लीनियर मोशन में क्या होता है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इंटरप्ट ना करेंगे तो वो कंटिन्यूअसली एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा indefinitely. बट नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अंदर जैसे ग्रेविटी है या फ्रिक्शन है, वो क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे लेके आ जाते हैं. तो लीनियर मोशन को मेजर किया जाता है किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन. Reciprocating motion. Reciprocating motion is back and forth motion. For example, reciprocating motion of the piston is converted to rotatory motion. अच्छा, reciprocating motion क्या होता है, आपका बैक एंड फोर्थ होता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका जो reciprocating motion है पिस्टन का, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है रोटेटरी मोशन में. Circular motion. When a body is moved in a circular path, it is called circular motion. It is measured in revolution per minute. Direction of turn also counts in measurement of circular motion. अच्छा देखिए, circular motion क्या होता है आपका, जब कोई भी बॉडी एक circular path में मूव करती है और इसको मेजर किया जाता है RPM, यानी कि revolution per minute. Next is irregular motion. When there is no obvious pattern to this movement, it is called irregular motion. तो देखिए, कोई obvious pattern नहीं होगा तो वो irregular motion है. Oscillation. Oscillation is back and forth motion about a point. For example, motion of pendulum. It is measured in period of time for one complete cycle or the number of cycles in a given time. तो oscillation आपने पढ़ा, जैसे pendulum की बात कर रहे थे हम, to and fro जो movement होता है, that is called oscillation. Intermittent motion. Intermittent motion has 15 motions that is start and stop
regularly. For example, motion of film reel in cinema projector. तो देखिए आपका इंटरमिटेंट मोशन एक नया तरह का मोशन है. इसमें आपके 15 मोशंस होते हैं जो स्टार्ट एंड स्टॉप होते हैं रेगुलरली. जैसे कि आपका जो मोशन ऑफ फिल्म रील होता है सिनेमा प्रोजेक्टर में, तो वो इसी तरह का मोशन है. Motion of living and non-living bodies. All living bodies possess the capacity to move. They move from place to place as animal or some bacteria in search of food or for survival. They perform different kinds of motion. For example, bigger animals, that is elephant, lion, cow, dog and human beings, etc. use their legs for movement from one place to other. The fish uses its fins and tails to swim. Crawling animals like snakes creep on the ground by twisting their bodies. The birds use their wings to fly in the sky. देखिए जितनी भी लिविंग बॉडीज है हर कोई मूव करता है, राइट एक जगह से दूसरी जगह आपके मूव करते हैं, चाहे एनिमल्स हो, चाहे स्मॉल एनिमल्स हो, चाहे बिग एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो. बर्ड्स भी आपकी मूव करती हैं. एनिमल possess 2 types of movement. Locomotion enables the animals to shift their entire body from place to place. It helps them to escape or move away from predators and to search for food and water. एनिमल्स जो हैं 2 तरह के मूवमेंट शो करते हैं. नंबर 1 इज लोकोमोशन, जिसमें उनकी पूरी बॉडी को वो शिफ्ट करते हैं प्लेस से दूसरी प्लेस में. इससे क्या करते हैं, मतलब कई बार वो खाने की तलाश में जाते हैं, अपने प्रेडेटर से बचने के लिए जाते हैं, राइट. In lower animals like cilia, flagella, muscle fibers, joints, feet as well as wings are used for movement, while in bigger animals, fins, feathers, bones and muscles help in locomotion. अब जो आपके lower animals होते हैं, invertebrates होते हैं, वो किसका यूज़ करते हैं, आपने जैसे कि feet का या आपके विंग्स का यूज़ करते हैं मूवमेंट के लिए, जबकि बिगर एनिमल्स में आपके फिन्स, फेदर, बोन्स, मसल्स, इन सभी का यूज़ करते हैं वो लोकोमोशन के लिए. Movement of human body parts. Movement of the human body depends upon its muscles that are attached to bones and joints. Since plant is also a living being, some movements can also be observed in plants, such as the growth of leaf towards the sun or a flower closing at night. But movement in plants are not visible because the movements are so small that it cannot be seen by the eye in a short period of time. In flowering plants, there are movements in the organs. The organs movement are slow. The plant movement is further categorized as positive and negative responses. All the roots grow away from light, whereas stems grow towards the light. ह्यूमन बॉडी में जो मूवमेंट होता है वो डिपेंड करता है उनके मसल्स पे, जो कि बोन्स और जॉइंट्स के साथ अटैच होती हैं. प्लांट भी आपके लिविंग बीइंग है, बट मूवमेंट उनमें भी शो होता है. बट ये नहीं है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बट उनके कुछ पार्ट्स जो हैं वो मूव करते हैं. जैसे लीफ जो है वो सन की तरफ जो है वो मूव करती है, फ्लावर्स नाइट में क्लोज हो जाते हैं. तो जो मूवमेंट होता है प्लांट्स में वो विजिबल नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल होते हैं और इनको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में देखा नहीं जा सकता. Non-living bodies need some external source of energy to set them in motion. For example, electric devices such as fans, iron cooler, and mixer can move only when we supply electrical energies. Car, motorcycle, bus, jeep, planes move due to the energy of CNG and petrol. Cricket ball can move only when hit by bat or thrown by someone. अब जो नॉन लिविंग बॉडीज होती है उनको किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है. जैसे कि आपके जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत होती है, तभी वो काम करना स्टार्ट करते हैं, राइट. आपके कार, आपका मोटरसाइकिल या बस है, इनको सीएनजी या पेट्रोल की ज़रूरत होती है. जबकि जो क्रिकेट बॉल है आपकी वो मूव करती है कब, जब उसको बैट से हिट किया जाता है या जब किसी के थ्रू वो थ्रो की जाती है. फीचर्स ऑफ अ मूविंग बॉडी. A common characteristic of all the moving bodies that they change their position with time. There must be a reference point to describe the position of a given moving body. तो features क्या है किसी भी moving body के? सबसे पहले जो है कि वो अपनी position को time के साथ change करते हैं, and एक reference point होना बहुत ज़रूरी है किसी भी given moving body की position को describe करने के लिए. For example, in the following figure, we see a car in front of a house at a particular time. House in this case is a stationary object taken as a reference point. Now after 5 seconds, we see that the same car is at another position, which is quite far away from the house. This means the position of this car is changing continuously with time and with respect to a stationary object, that is house. So we can say that this car is moving or that car is in motion. देखिए आपको एक कार दी गई है और ये बताया गया है कि ये घर के पास है, तो एक किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो घर आपका स्टेशनरी, हाउस जो आपका स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, यानी हाउस आपका रेफरेंस पॉइंट है. अब 5 सेकंड के बाद जो सेम कार है वो दूसरी पोजीशन पे आ जाती है जो उस हाउस से थोड़ी सी दूर में. इसका मतलब क्या है कि जो कार की पोजीशन है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू विद टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यानी कि हाउस जो आपका क्या है, रेफरेंस पॉइंट है. तो कह सकते हैं कि कार जो है आपकी वो क्या है, मोशन में है. We can explain the motion of a body. The position of the moving body can be explained by the following quantities. The distance covered by the body from a fixed reference point. The angle which the line joining the body and the origin makes
विद द रेफरेंस एक्सिस। तो देखिए जो पोजीशन है किसी भी मूविंग बॉडी की, उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट से, एंड एंगल जो कि आपकी लाइन ज्वाइनिंग द बॉडी एंड ओरिजिन आपका बना रहे हैं विद द रेफरेंस एक्सिस। We can explain the given points with the help of above figure. Figure represent the direction with O as a reference point and OX as a reference axis. A moving body is at B with respect to the reference point O at some particular time. OB represent the distance which is 4 meter from the reference point. Furthermore, OB makes an angle of 45 degree with the reference axis OM extending in the eastern direction. Thus, we can see that the body is located at a distance of 6 meter from the reference point, 45 degree east of north. तो देखिए इसमें क्या है, आपका एक मूविंग बॉडी है आपका, जो आपके लास्ट पेज में आपको डायग्राम दिया गया था, बार ग्राफ दिया गया था। मूविंग बॉडी आपकी बी और रेफरेंस पॉइंट है आपका ओ किसी पर्टिकुलर टाइम पे। ओ बी जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है विच इज 4 मीटर, ओके, फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। इसके बाद ओ बी जो है एक एंगल बना रहा है 45 डिग्री का विद रेफरेंस एक्सिस विच इज ओ एम, जो कि ईस्टर्न डायरेक्शन में आपका एक्सटेंड हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो बॉडी है वो कहाँ पे लोकेटेड है, 6 मीटर के डिस्टेंस पे फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट एंड 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। Uniform and non-uniform motion. We can understand the uniform and non-uniform motion of the body with the help of given example. See, आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, टाइम देखिए 1, ये आपके इस मिनट में है, डिस्टेंस कवर्ड देखिए इक्वली आपका डिस्टेंस जो है इंक्रीज हो रहा है। अ मोटरसाइकिल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट मिनट इज 10 मीटर। पहले मिनट है उसमें उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर। सिमिलरली द डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड मिनट इज 10 मीटर, दैट इज 10 plus 10 minus 10 is equal to 10 meter. Similarly, the distance covered in each subsequent minute is 10 meter. अब नेक्स्ट में उसने कितना किया है, देखिए 2 मिनट में उसने कितना किया है, 20 माइनस 10 आपका कितना हो जाएगा, 10 मीटर, यानी कि डिस्टेंस उसने हर मिनट में कितना कवर किया है, 10 मीटर। वी कैन से द मोटरसाइकिल इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए आपकी जो मोटरसाइकिल है ये इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि जो बॉडी है वो आपकी यूनिफॉर्म मोशन में। A body has a uniform motion if it travels equal distances in equal intervals of time, no matter how small these time intervals may be. In other words, the direction of motion and the speed of a body in uniform motion do not change. देखिए जो डायरेक्शन होता है मोशन का या जो स्पीड होती है बॉडी की यूनिफॉर्म मोशन में वो चेंज नहीं होती। इन केस वी प्लॉट अ ग्राफ ऑफ द डिस्टेंस वर्सेस टाइम वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। और जब अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ना डिस्टेंस और टाइम का, तो हमें कैसे मिलेगी, हमें हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। A body is said to be non-uniform motion if the speed of the body doesn't remain constant. For example, if you drop a ball from the roof of a tall building, we will find that it covers unequal distances in equal intervals of time. Another example of this non-uniform motion is a motorcycle traveling in a straight line but slowing down from time to time because of the traffic. From this example, we can see that the motorcycle travels different distances in different time intervals. Its speed changes while traveler keeps changing. अच्छा देखिए, एक बॉडी को नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कब कहा जाता है कि अगर जो बॉडी की स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं रहती। जैसे कि अगर एक बॉल को आप लंबी सी टॉल बिल्डिंग है उसकी रूफ से ड्रॉप करेंगे तो वो अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करेगा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। दूसरा एग्जांपल है आपका कि जो मोटरसाइकिल आपकी स्ट्रेट लाइन में तो ट्रैवल कर रही है बट वो टाइम टू टाइम स्लो डाउन हो जा रही है क्यों, ट्रैफिक की वजह से। ओके, तो इसमें क्या होगा कि इसकी स्पीड जो है चेंज होती रहेगी, जबकि जो ट्रैवलर कीप्स चेंजिंग। देखिए आपका ये ग्राफ जो दिया गया है ये आपका यूनिफॉर्म मोशन का था क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन था, राइट। इफ वी प्लॉट अ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम, द ग्राफ ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी आपकी। स्पीड, if a car is running slow, we say that its speed is slow, and if a car is running fast, then we can say that its speed is high fast. The speed of a body gives us an idea of how slow or fast the body is moving. देखिए अगर आपकी कार जो है वो स्लो चल रही है तो हम कहते हैं इसकी स्पीड कम है, अगर वो फास्ट चलती है तो हम क्या कहते हैं कि इसकी स्पीड काफ़ी फास्ट है। तो जो स्पीड होती है बॉडी की वो एक हमें आइडिया देता है कि वो बॉडी कितना स्लो और कितना फास्ट मूव कर रही है। This speed is a distance traveled by a body in unit time interval. Speed is equals to distance by time. देखिए स्पीड आपका हमेशा होगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, राइट। अब आपको जैसे स्पीड निकालना है, आपको डिस्टेंस दिया गया है स्पीड 100
किलोमीटर द डिस्टेंस एंड 4 आवर्स द टाइम। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 25 किलोमीटर पर आवर आएगा, यानी कि आपकी स्पीड है। इफ अ बॉडी इज मूविंग एट अ वेरिएबल यूनिफॉर्म स्पीड, दैट स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर कोई बॉडी जो है वो वेरिएबल यूनिफॉर्म स्पीड से अगर आपकी मूव कर रही है तो फिर हम क्या करेंगे कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है वो लेंगे अपॉन टोटल टाइम टेकन। स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टाइम इन विच द डिस्टेंस इज कवर्ड। The above given formula for calculating speed has three quantities in it: speed, distance, travel and time taken. If we are given the values of any two quantities, then the value of third quantity can be calculated by using this formula. अच्छा, अब आपकी फॉर्मूला देखिए, इसमें 3 आपकी क्वांटिटीज है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। अब इन 3 में से कोई भी 2 क्वांटिटीज आपको पता है तो आप थर्ड क्वांटिटी को फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो अब देखिए, कुछ ये स्पीड दे रखी है, कुछ एवरेज स्पीड्स हैं, जैसे एवरेज स्पीड ऑफ रैट और वॉकिंग मैन। दिस इज द एवरेज स्पीड। Units of speed. Standard units of speed is meter per second or meter per second. If distance is very small, then the unit is centimeter per second. If we want to know the speed of tiny creatures like ant or earthworm, etc., then speed is expressed in centimeter per second. If the distance is very large, then unit is expressed in kilometer per hour. For example, if a train has covered a distance of 20 kilometer, then the speed is expressed in kilometer per hour. अच्छा देखिए, स्टैंडर्ड यूनिट जो स्पीड की होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। आप चाहे ऐसे लिखें या इस तरह से लिखें। अगर डिस्टेंस बहुत छोटा है तो उसकी स्पीड को फिर क्या करेंगे, जो स्पीड का जो यूनिट होगा वो आपका आएगा किस में, सेंटीमीटर पर सेकेंड और दिस। और डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा है, राइट, तो उसकी स्पीड को मेजर किया जाएगा किलोमीटर पर आवर में। The speed of a running car is shown by an instrument called speedometer, which is fixed with the car. The speedometer gives the speed in kilometer per hour. The distance traveled by a car is measured by another instrument called odometer. Speedometer जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो किसी भी व्हीकल की स्पीड को मेजर करता है, जबकि जो ओडोमीटर है वो ये शो करता है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू कानपुर इज 510 किलोमीटर। अ कार टेक्स 6 आवर्स टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम कानपुर टू दिल्ली। एट विच स्पीड डज इट ट्रैवल? देखिए, आपको डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस इज 510 किलोमीटर, ओके, एंड आपको दिया कि कार ने कितना टाइम लिया है, टाइम टेकन इज 6 आवर्स, एंड यू हैव टू फाइंड एट व्हाट स्पीड डज इट ट्रैवल, कितनी स्पीड में वो ट्रैवल कर रहा था। स्पीड आपका होता है, यू नो दैट, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो 510 अपॉन 6 एंड ये आपका हो जाएगा 85 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी स्पीड होगी। एग्जाम्पल 2 की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे, इसमें आपको टाइम निकालना है। एग्जाम्पल 3, इसकी प्रैक्टिस भी आप खुद से करेंगे। इसमें आपको देखिए डिस्टेंस आपको निकालना है, आपको टाइम गिवन है, आपको स्पीड गिवन है। दिस इज स्पीड एंड दिस इज टाइम एंड यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस। Kinds of speed. Uniform speed. When a body covers equal distance in equal intervals of time, the body is said to be moving with uniform speed. For example, a car is said to have uniform speed if travels 60 km per hour, 30 km every half hour, 15 km every quarter of an hour, 1 km every minute, and 1/60 km every second. यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहा जाता है? जब एक बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंस को कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे कि कार की यूनिफॉर्म स्पीड है, अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर ट्रैवल करती है, ओके, 30 किलोमीटर हर आधे घंटे में ट्रैवल कर रहा है, 15 किलोमीटर 1 आवर के क्वार्टर में, और 1 किलोमीटर एवरी मिनट, एंड 1/60 किलोमीटर एवरी सेकेंड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन equal intervals of time, the body is said to be moving with the non-uniform speed. अब non-uniform speed कब होता है? जब बॉडी जो है आपकी unequal distance कवर कर रही है in equal intervals of time. For example, a car covers 60 km from 6 a.m. to 7:30 a.m., 40 km from 7:30 to 9 a.m. and 50 km from 9 a.m. to 10 a.m. अब आप देखिए 60 किलोमीटर उसने कवर किया 6 AM से 7:30, कितना टाइम हो गया आपके पास? 1.5 आवर। 40 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया 7:30 से 9 AM, अगेन ये 1.5 आवर है। एंड 50 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया 9 AM to 10 AM। अब आपका क्या है? ये जो टाइम आपका आ गया 1 आवर है। देन कार इज मूविंग with a non-uniform speed. If you want to calculate the non-uniform speed of car, then divide the total distance covered by the total time taken. अच्छा, आप देखिए, आपको
ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, आपको उसको निकालना है तो आप क्या करेंगे, जितना डिस्टेंस कवर किया है उसको प्लस करके आपने कितना करना है, जो टाइम आपने लिया है टोटल उससे डिवाइड करना है, राइट। तो देखिए आपका डिस्टेंस कितना आएगा, पहले उसने 60 किया था, देन 40 एंड 50, तो 150 किलोमीटर आ गया, एंड टाइम आपका आया 4 आवर्स। 4 आवर्स कैसे आया, देखिए आपका जो 6 AM से 7:30 1.5 आवर था, राइट। फिर 7:30 से 9 1.5 आवर था, ये आपका हो गया 3 आवर, एंड 9 AM to 10 AM आपका 1 आवर था, तो टोटल टाइम कितना हो गया आपका 4 आवर। और फिर इसके बाद आप एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्टिविटी 10.3 Object: to find the speed of different boys by making them run the same distance. Measure 4 sides of the ground with the help of measuring tape. At all the lengths of 4 sides, record the total length of the perimeter of the ground. देखिए इसमें क्या करना है, डिफरेंट बॉयज़ की स्पीड को मेजर करना है, फाइंड करना है। तो 4 साइड्स हैं, जैसे कि ग्राउंड के 4 साइड्स उसको मेजर करना है मेजरिंग टेप की हेल्प से। जितनी भी जो लेंथ है चारों साइड्स की, इसकी लेंथ जो है हम प्लस कर लेंगे, जैसे कि पैरामीटर आ जाएगा ग्राउंड का। टेक 1 स्टॉप वॉच एंड 1 whistle. Call 4 or 5 boys and name them A, B, C, D, and E. Ask boy A to run along the ground on signal of your whistle. Now hold the stopwatch in your right hand and a handkerchief in your left hand. Give the signal with whistle and handkerchief and start the stopwatch. When boy A completes one route, stop the stopwatch. Record the time and then find the speed by dividing the distance with time. Repeat the same with other boy B, C, D, and E. Record the time in each and every case and calculate the speeds of all the boys. देखिए आपको 4 या 5 बॉयज़ को ले सकते हैं, उनको नाम दे देना है A, B, C, D एंड E। स्टॉप वॉच और विसल लेनी है। अब जैसे बॉय ए को आप बोलेंगे कि वो ग्राउंड में रन करे, ओके, आप उसको सिग्नल करेंगे अपनी विसल से। फिर स्टॉप वॉच को जैसे ही वो स्टार्ट करेगा, अपने स्टॉप वॉच को स्टार्ट करना अपने राइट हैंड में और हैंकरचीफ को रखना है लेफ्ट हैंड पे। फिर उसको सिग्नल देना है विसल के साथ एंड हैंकरचीफ के साथ कि स्टॉप वॉच, और फिर स्टार्ट करना है अपने। फिर जब वो एक राउंड कंप्लीट कर लेगा, स्टॉप कर देना स्टॉप वॉच को, टाइम को रिकॉर्ड करना है एंड फिर उसके बाद स्पीड को आप क्या करेंगे, फाइंड करेंगे जब आप डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे टाइम से। और फिर सेम जो प्रोसेस है आपने बी, सी, डी एंड चारों बॉयज़ है ना, उनके साथ रिपीट करना है। Velocity of an object is its speed in a particular direction. It is also measured like speed but with direction. Velocity is equals to displacement upon time. देखिए velocity जो होती है ना किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो उसकी स्पीड होती है बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसको भी स्पीड की तरह नापते हैं बट इसमें डायरेक्शन होता है आपका। वेलोसिटी का आपका फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, acceleration. When we sit in a car and its speed is increasing, we say that the car is accelerating. It can be defined as a rate at which a speed is changing in a given time. Acceleration can also be negative, that is when speed is decreasing. Then it is called deceleration. Acceleration is equals to final speed minus initial speed upon time between final and initial speed. देखिए acceleration क्या होता है, जैसे कि आप कार में बैठे हैं और इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है तो हम कहेंगे कि जो कार है वो एक्सेलरेट हो रही है। इसको और कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि रेट एट विच स्पीड इज चेंजिंग इन अ गिवन टाइम। तो एक्सेलरेशन आपकी निगेटिव भी हो सकती है जब आपकी स्पीड डिक्रीजिंग होती है, तो इसे कहते हैं डी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपके पास फाइनल स्पीड में से इनिशियल स्पीड को माइनस करते हैं एंड जो फाइनल और इनिशियल स्पीड के बीच का जो टाइम होता है उसे हम लेते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर: Galileo, an Italian scientist, discovered the principle of pendulum. Sun clock, it is also called hourglass, works on the principle that all the sand from the upper chamber falls into the lower chamber in a fixed amount of time. Stopwatches used to measure short time intervals. Now digital watches are also used for same purpose. When a body covers equal distances in equal intervals of times, it is said to have uniform motion and uniform speed. When the position of a body changes continuously with respect to time and its surroundings, the body is said to be in motion. The graph of distance versus time for uniform motion is a straight line. Remember that. चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।